Rajiv Kumar Sinha Sahab, sir. Sir. Namaskar to all. Thank you, sir. Today is the second day of our national seminar on the topic, the problems of social life and the relevance of universal religion. Organized by our Department of Philosophy and Political Science of Markham College of Commerce. I congratulate for the successful first and second day before I start the validatory session. Our respected Professor R.C. Sinha Sahab from Patna, Dr. Devendra Nath Tiwari ji, renowned philosopher and former head of BHU, Honorable Principal of Markham College of Commerce, Professor Bimal Kumar Misra, a renowned mathematician of India, Dr. S.K. Barai, Head of Department of Philosophy, Dr. Ranjit, Head of Department of Political Science, Hazaribagh, Dr. Vishnu Shankar, MCC, Hazaribagh, renowned scholars attending the webinar, research scholars, teachers, future of nation, our students. I saw some of the principal of B.Ed college also here. I saw some of the teachers out of our Markham College of Commerce and University. So, welcome to you all. Good afternoon to you all. At first, I congratulate all the speakers, paper presenter, organizer, for 2 days successful and wonderful speakers, wonderful presentation of the theme of the present burning topic, universal religion. It was the most burning topic of the present day. Universal religion is virtually taken refer in concept of a single religion. And I can say you one thing, that universal religion is a single religion. What that is? That is inheritance of humanity. Simple. It is a simple inheritance of humanity. But if you see the main universal religion in Buddhism, Christianism, Islam, which is spread all over the world. And the objective of this universal religion, in my opinion, is, or in short, the meaning of universal religion, to love man is to love God. That is all. This much I can say. You will be surprised to see that the Markham College of Commerce, in their popular series, the political science and philosophy, both department has taken a very good step, and they have started it from yesterday, and it is continuing, and hope this will be the end today. But I will request, of course, our principal and the head of Department of Philosophy and Political Science to continue the popular series. सर, हमारे यहाँ पे 2 गुरु हैं, एक प्रोफेसर R.C. सिन्हा and Professor D.N. Tiwari. Sir, you will be happy to know that although I am a man of molecular genetics, DNA fingerprinting, but fortunately I have gone through the philosophy also. That was the Indian philosophy by the Radhakrishnan. I have read, sir, both the book. There is 2 series of books there by the Radhakrishnan. And sir, पूरी किताब को मैं पढ़ा हूँ, दोनों वॉल्यूम को मैं पढ़ा हूँ, और कहते हैं एक चीज, एसोसिएशन. आप जिसके साथ रहोगे, जैसे लोगों के साथ रहोगे, वैसे बनोगे. दैट इज नॉन एसोसिएशन. अब राधा कृष्णन तो मिलने वाले नहीं हैं, तो उनका एसोसिएशन उनकी किताब के साथ होता है, उनके थीम के साथ होता है, उनके विजन के साथ होता है. और मैं फील कर रहा था कल कि डॉक्टर R.C. सिन्हा
का फेस को गौर से देखिए तो एकदम फिलोसफर हो चुके हैं वो। इज ए फिलोसफर, एक थिंकर के रूप में दिख रहे थे, जस्ट लाइक राधा कृष्णन। सर डॉक्टर डी.एन. तिवारी जी के बारे में बताऊं आपको, तो कल का जो उनका स्पीच मैं सुन रहा था, आई फील दैट ही इज ए जॉन हॉस्पर। एक फिलोसफर है जॉन हॉस्पर, और राधा कृष्णन का इंडियन रिलीजन सब लोग जानते हैं। तो जॉन हॉस्पर जो फिलोसफर थे, एकदम डी.एन. तिवारी वाज गोइंग इन द सेम वे। सर पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट रहा है, उसमें एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो हम लोग का अपना भी सब्जेक्ट रहा है, और कंपटीशन हम लोग हमेशा अपना सब्जेक्ट रखे हैं। आज भी एल.डी. व्हाइट और फिफ्नर के जो बुक हैं, उसी के तौर पर आज भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम, या आज भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। वेरी फ्रैंक, दे आर द बुक्स एल.डी. व्हाइट और फिफ्नर आज भी मेरे पास हैं। राधा कृष्णन की फिलॉसफी की किताब आज भी मेरे पास है। सो फाइनली आज के वैलिडिटी सेशन में आप सबों को बहुत पुनः धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आज का वैलिडिटी सेशन में 2 दिन का सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए शुभकामना, मुबारकबाद देता हूँ। जितने लोग जुड़े हैं उसको मैं पहचान भी नहीं पाया, लेकिन 2 स्पीकर डॉक्टर प्रशांत शुक्ला और डॉक्टर सिराजू इस्लाम को मैंने पूरा सुना। ही इज फ्रॉम विश्व भारती यूनिवर्सिटी, और रियली जो थीम है, जो उनका विजन है अबाउट द रिलीजन, आज के जमाने में उसको पॉपुलराइज करने की जरूरत है। थैंक यू सर। सर फाइनली मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि जो टीचर्स, स्टूडेंट, एकेडमिशियन आज जुड़े हुए हैं, उन सबों का एक, सर आप लोग गुरुजन, जी हमको बहुत अच्छा लगा। आपके लिए प्रिंसिपल साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस फिलॉसफी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन सारे लोगों को ई सर्टिफिकेट इशू किया जाए। ये एक बहुत बड़ा सेमिनार रहा है, और ई सर्टिफिकेट जिनका अभी आप यहाँ पर लिस्ट में देख रहे हैं कि जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं, उनको अपना एक स्नैपशॉट ले लीजिए और सारे लोगों का मेल आईडी के थ्रू उन लोगों को भेजा जाए। पुनः मैं आप सबों को आज के वेबिनार के लिए और पॉपुलर लेक्चर सीरीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद, थैंक यू। कहाँ पूछा? धन्यवाद सर, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल करके हमारे आयोजन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। इसके लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और ये सर आपका ही प्रोत्साहन और प्रेरणा है कि हम सब इस ओर आगे बढ़ रहे हैं, और भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। ये सर मैं दोनों विभाग की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं। धन्यवाद। मैं यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल होना चाहिए। मैं लास्ट टाइम भी जब आप इसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे, मैंने कहा था इंटरनेशनल होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम ये इंटरनेशनल होना चाहिए। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। थैंक यू। थैंक यू। इसी के साथ मैं अपने प्रिंसिपल सर डॉक्टर विमल मिश्रा सर से आग्रह करूंगा कि आप अध्यक्षीय भाषण करें। ये मैं एक उल्लेख करना चाहूंगा कि ये सर का ही प्रेरणा है कि आज हम सब इन एकेडमिक गतिविधियों में और पढ़ने पढ़ाने से थोड़ा इतर हट करके इस तरह की गतिविधियों को हम संचालित कर पा रहे हैं। और इन सब के पीछे अगर हम कहें तो प्रेरक शक्ति के रूप में हमारे युवा और ऊर्जावान प्राचार्य महोदय का हाथ है, और वही इसकी प्रेरक शक्ति है। तो मैं फिर से आग्रह करता हूं कि आप सर अध्यक्षीय भाषण दें। डॉक्टर विमल मिश्रा सर। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के
माननीय प्रतिकुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा जी और इस 2 दिवसीय वेबिनार में अपनी संभाषण में उपस्थित हुए देश के विभिन्न संस्थानों के दार्शनिक, विद्वतगण तथा रिसर्च स्कॉलर्स, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। मार्कम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हजारीबाग की ओर से आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद। हम लोगों ने 2 दिवसीय वेबिनार प्रॉब्लम ऑफ सोशल साइंस एंड द रेलेवेंस ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन पे कल फर्स्ट टेक्निकल सेशन की शुरुआत करी और हमारे मुख्य अतिथि थे इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च के प्रेसिडेंट और पटना यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष फिलोसफी के प्रोफेसर डॉक्टर आर.सी. सिन्हा जी। डॉक्टर रमेश चंद्र सिन्हा जी ने इस गूढ़ विषय पर बहुत गंभीरता से अपनी बातों को रखा। अमूमन इस वेबिनार में 10 राज्यों से 200 से अधिक प्रतिभागियों ने अपनी सहभागिता निभाई। ये एक पुनर्रूपेण राष्ट्रीय वेबिनार है और इस राष्ट्रीय वेबिनार में जिन विशेषज्ञों ने अपनी राय को रखा उनमें से डॉक्टर डी.एन. तिवारी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विभागाध्यक्ष रहे बीएचयू वाराणसी में, साथ में आज हम लोगों ने डॉक्टर ओम नारायण तिवारी जी को और डॉक्टर सिराजुल इस्लाम, डॉक्टर प्रशांत शुक्ला जी, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी, डॉक्टर ओम नारायण तिवारी महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश से थे, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से थे, डॉक्टर प्रशांत शुक्ला लखनऊ यूनिवर्सिटी से थे और अभी जो हम लोगों ने कंटिन्यूअसली डॉक्टर सिराजुल इस्लाम को सुना वो विश्व भारती विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के फॉर्मर प्रोफेसर एंड हेड रहे। कल के टेक्निकल सेशंस में रिसर्च स्कॉलर्स ने अपनी सहभागिता किया, टेक्निकल पेपर्स की प्रेजेंटेशन हुई और उसके मॉडरेटर रहे डॉक्टर आर.एन. पांडे जो हमारे विनोबा विश्वविद्यालय के चतरा कॉलेज के प्रधानाचार्य थे और साथ में अलग अलग लोगों ने अपने वक्तव्यों को दिया। मिसाल के डॉक्टर गंगानाथ झा जी, डॉक्टर विनोद शर्मा जी, डॉक्टर सुबोध सिंह सिंगित जी, डॉक्टर ललिता राणा जी और अन्य लोगों ने। आप लोगों ने कुल मिला के जिस रेलेवेंट टॉपिक पे चर्चा हुई, बड़ी प्रासंगिक विषय था। महात्मा गांधी की कल पुण्यतिथि थी और हम लोगों ने इस तिथि को चुना कि महात्मा गांधी का एक स्वप्न था कि सामाजिक समरसता कैसे हो और सर्वधर्म भाव की संरचना कैसी हो। हम लोगों ने अलग अलग धर्म के बारे में, उनके गूढ़ रहस्यों के बारे में अपने विद्वत जनों से सुना, हिंदुइज्म के बारे में, सूफिज्म के बारे में और साथ में अन्य धर्मों के आदिवासी प्राचीन जो उनकी समाज थी, उनकी संरचना थी, उनकी धर्म थी, प्रकृति थी, इन सबों को विस्तार से सुना। और निश्चित रूप से हमारे शोधार्थियों को एक नई दशा और दिशा मिली है कि कैसे हम जो गूढ़ रहस्य हैं धर्म के और उनकी जो संदेश है वो समाज में हम किस रूप से उतार सकें जिससे कि एक बहुत ही सुदृढ़, स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। इस पे गहन मंथन हुआ और बहुत कुछ निष्कर्ष निकल के आया। हमने अपने दोनों विभागों के विभागाध्यक्षों को ये कहा है कि आप इसकी एक रिपोर्ट बनाएं विभिन्न विशेषज्ञों के द्वारा, उनके द्वारा रखे गए वक्तव्यों का, और वो सभी को आप शेयर करें और साथ में जो बातें निकल के आई हैं वो विश्वविद्यालय और जो उचित प्लेटफॉर्म है वहां पर संप्रेषित कर सके, जिससे कि हम जो आउटपुट आया है इस वेबिनार का, जो लोगों ने समझा है और लोगों ने जो छिपी हुई रहस्यों का उजागर किया है, वो निश्चित रूप से हम लोग उस पर ध्यान दें। एक स्वस्थ समाज, जैसे कि मैं अभी सुन रहा था बड़े विस्तार में और कल भी बहुत लोगों को सुना, और निश्चित रूप से तभी स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है और एक स्वच्छ समाज का भी निर्माण हो सकता है जब हम धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझें और अपने आप को बड़ा आत्मविश्वासी बनाने की आवश्यकता है
खुद को बहुत बुलंद करना है, जैसे मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब ने कहा कि खुद को बुलंद कर इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे बता तेरी अंतिम रजा क्या है। एक बड़ा संदेश है, किसी मशहूर शायर ने ये बात कही है। तो निश्चित रूप से एक संदेश इसमें छिपा हुआ है कि हमें अपने इकबाल ने कहा था, इकबाल। जी 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 जी। तो खुद को, हम लोगों को एक आत्मविश्वासी बनना है। आत्मविश्वास इस संदर्भ में कि हम कैसे एक नई प्रकाश समाज में दे सकें, एक स्वस्थ समाज का कैसे निर्माण कर सकें, धर्म को साथ में ले सकें। बड़ी एक पतली सी डोर होती है विभिन्न धर्मों के बीच में, और वो डोर कुछ नहीं है, वो एक मानव निर्माण जो लोगों ने संरचना करी है, जिनकी मानसिकता संकीर्ण हो गई है, उन संकीर्ण मानसिकता को कैसे हम स्वस्थ कर सके, कैसे हम सर्वधर्म संभाव की संरचना हो सके, इस पे प्रकाश डालने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से इन दो दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने, विद्वानों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, और हमें ये जो मार्कहम पॉपुलर लेक्चर सीरीज 2019 से हम लोगों ने इसका आरंभ किया, और हमारे प्रोफेसर AF मार्कहम के नाम पर ये मार्कहम पॉपुलर लेक्चर सीरीज है, जो संत कोलंबा महाविद्यालय के प्राचार्य रहे 1930 से 1965 तक, और फिर रांची विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, एक महान शिक्षाविद, और उन्हीं के नाम पर हमारा महाविद्यालय है। तो हम लोगों ने मार्कहम पॉपुलर लेक्चर सीरीज, ये 25वां हुआ इस कड़ी में, और आगे भी इस कड़ी में जैसे माननीय प्रतिकुलपति महोदय ने कहा है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार कराएं। निश्चित रूप से हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे साथ इतने लोग जुड़े, राष्ट्र के विभिन्न विश्वविद्यालयों से, विभिन्न संस्थानों से लोगों ने अपने विचार को रखा। मार्कहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हजारीबाग तहे दिल से आप सभी विद्वतगणों का आभार व्यक्त करता है, और साथ में हमें कुछ नया और करने का उत्साह, उमंग देता है। और निश्चित रूप से ये वेबिनार एक प्रकाश तो जरूर दे गया कि सामाजिक संरचना स्वस्थकर होनी चाहिए, समरसता होनी चाहिए उसमें, और सर्वधर्म संभाव का संदेश को बड़ी प्रागल्भता से हम अपने समाज में उतार सके। ये एक वेबिनार का जो मुझे समझ में आया, एक सारगर्भित जो बात निकल के आई, वो यही हुई। मैं आप सभी विद्वतगणों का, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए ढेर सारी बधाई, शुभकामना, मंगलवाद व साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, ये आप ही की प्रेरणा से संभव हो पाया, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र तो हैं ही, साधुवाद के भी पात्र हैं, क्योंकि किसी भी कार्य के पीछे कोई ना कोई प्रेरक शक्ति काम करती है, और वो प्रेरणा आप हैं। और विगत 3 वर्षों का जो आपका यहाँ कार्यकाल रहा है, इस तरह की गतिविधियों का मार्कहम कॉलेज केंद्र बनता रहा है और आगे भी बनता रहेगा। इसी के साथ मैं इस 2 दिवसीय संगोष्ठी के अंतिम पड़ाव पे इस संगोष्ठी के जो आयोजक सचिव रहे हैं डॉक्टर विष्णु शंकर जी से आग्रह करूंगा कि आप सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर विष्णु शंकर जी। माननीय प्रतिकुलपति विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, सादर नमन। प्राचार्य मार्कहम कॉलेज, सादर नमन। और इस वेबिनार में आए हुए सभी प्रतिभागियों का मैं सादर नमन करता हूं। और सबसे पहली बात तो मैं इस संगोष्ठी में जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुझे सहयोग किया, उनको में भी मैं
धन्यवाद देता हूँ। और दर्शन परिवार की एक परंपरा रही है कि चाहे हम कितने भी दूर रहें, कितने व्यस्त रहें, यदि हम उन्हें आपकी आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर साहब। सॉरी सर। दर्शन परिवार की एक विशेषता रही है, परंपरा रही है कि जब भी हम लोग कहीं भी रहें, कोई भी परिवार का सदस्य किसी गुरु को आमंत्रित करता है तो हम अपने व्यस्त समय में से उसके आमंत्रण को स्वीकार करते हैं और उसको सहयोग करते हैं अपने अनुभवों के द्वारा, विचारों के द्वारा, कि छात्रों पर जो नई पद्धति और नए जो अन्वेषण है उसको किस तरह से लाभान्वित किया जाए, पहुंचाया जाए, इसके लिए हमारा परिवार तत्पर है। उस परिवार को मैं नमन करता हूँ कि हमारे निमंत्रण पर दूर रहते हुए भी सभी लोगों ने हमें प्रोत्साहित किया, सहयोग दिया। और इस धन्यवाद ज्ञापन की शुरुआत में सर्वप्रथम प्रमोद कुमार दास सर से करता हूँ, जिन्होंने उत्कल यूनिवर्सिटी के नवागढ़ ऑटोनोमस कॉलेज में HOD फिलोसफी विभाग है। उन्होंने मुझे हर तरह से सहयोग किया या सत्र के रूपरेखा तैयार करने में, तकनीक को कैसे विकसित करें, उसका किस तरह से हम वीडियो डाउनलोड करें, उन्होंने उसको हमें सहयोग दिया। उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रशांत शुक्ला सर, इनसे हमारी मुलाकात 2012-13 का अधिवेशन में हुआ था। उस समय भी इन्होंने हमसे सहयोग किए थे, प्रोत्साहित किए थे कि आगे बढ़िए, हम साथ में हैं। तीसरे क्रम में मैं डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव सर का अभिनंदन करता हूँ, जो हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सीनियर रहे हैं। उन्होंने हमें भी इस कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार करने में मदद की है। तत्पश्चात अपने माखम कॉलेज के प्रचार महोदय को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने हर तरह से हमें आगे बढ़ने के लिए हर कदम पर सहयोग दिया, प्रोत्साहित किया, तो कि जिसके हम रूपरेखा तैयार कर पाए। इस धन्यवाद ज्ञापन को मैं अपने टीम के सभी सदस्यों को, टेक्निकल सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने अब हमें सहयोग दिया, संचालन करने में सहयोग दिया और टेक्निकल सेशन को सफल बनाने में भी हमारी टीम ने उसको संयोजित किया। उसके लिए सभी लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। उसके बाद इस सेमिनार में जितने भी प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर रिसर्च स्कॉलर ने अपने विचार को रखा, अब उस पर हम लोग अभी मंथन करेंगे कि उनकी जो समस्या है उसकी समाधान हम लोग किस रूप में कर पाए, क्योंकि हमारे रिसर्च स्कॉलर ही इस परिवार को आगे की पीढ़ी को ले जाने वाले हैं। उनको सुसज्जित करने के लिए हमें उनके अन्वेषण को नई तकनीक की तरह किस तरह से जोड़ा जाए कि दर्शन अपनी पुरानी परंपरा में सुदृढ़ भारतीय दर्शन का निर्माण किया जा सके। उसके पश्चात में श्रद्धेय गुरुजी आशीष सिन्हा सर और श्रद्धेय गुरुजी DM सर को तो मेरे पास कुछ शब्द नहीं है कि उनको हम कैसे धन्यवाद ज्ञापन करूं, क्योंकि इतने जिन्होंने जो भी मैं सीखा हूं सजावट के लिए, गोष्ठी की सजावट के लिए, उन्होंने हमें अपने अनुभवों को अपने साथ रखकर हमारे विभिन्न संगोष्ठियों में मुझको ले जाकर ये सारी चीजों को हमें
हर एक कड़ी को उन्होंने सिखाया कि देखो इस तरह से इस पद्धति के द्वारा ऐसे करके एक संगोष्ठी को रूप दिया जाता है। हो सकता है कि मुझसे कहीं भूल हो गई हो, तो उसके लिए मैं इस मंच से समायाचना करता हूँ। धन्यवाद सर। फीडबैक का लिंक बाद में अब ये भी देना धन्यवाद विष्णु जी। और मैं अपने सभी प्रतिभागियों से यह कहना चाहूंगा कि अभी फीडबैक लिंक दिया जाएगा और आप फीडबैक फॉर्म भर करके उसे सबमिट कर देंगे और आप निश्चिंत रहें, आपका सर्टिफिकेट आपके ये पे ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगा। और इसी के साथ मैं इस 2 दिवसीय संगोष्ठी के समापन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद।